So in this lecture we have started a new topic, that is string matching. So I think all of you know about what is string. String is a collection of character. So in text editing programs we currently need to find all occurrence of pattern in the text. Typically the text is a document being edited and the pattern search for is a particular word supplied by the user. So efficient algorithm for this problem is called string matching. So there are the different another applications of string matching algorithm, that is DNA sequence, and that may be also used in your internet search engine. So internet search engine also use them to find out the web page. So in this problem we have given two type of string. The first one is known as your text, the second one is known as your pattern. So we have simply searched the pattern in the text. So they have the two type of string. The first one is the text. So text is a collection of character, so the length is your n. The second, what we want to search pattern, so that pattern we will search in the text. So the pattern p, it's having also a length, the length is your m. So obvious है the length of m, the length of p will be less than equal to the length of text, means m will be your less than equal to n. So here in this problem I will clear again. We have given two type of string. The first one is known as your text, the second one is your pattern. So we have simply searched the value of pattern in the text. That is the one of the example. The value is given is your text, that is your text, and that is your pattern. So we want to find out this pattern in this text. So correspondence, we have different algorithm for the string matching, but in our syllabus we have given two. We will cover only two algorithms. The first one is the Naive algorithm, the second one is the Rabin-Karp algorithm. So to find out the string matching problem, there can be a valid shift. So if we want to search the pattern, so you are simply increase the value of one variable. So you are simply search from starting from the s value will be s plus 1, then next value s plus 2, then s plus 3 up to s plus m. सो आपका जो वैल्यू आपने जो सर्च करनी है वो 1 to m. सो आपने एक टाइप से जो s है वो एक आपका शिफ्ट है, वो उसकी वैल्यू आपको सिंपली फाइंड आउट करनी है. दैट इफ दैट कंडीशन इज मैच, अगर आपकी ये s के किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के करस्पोंडेंस ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, तब इसको हम वैलिड शिफ्ट कहते हैं. अदरवाइज इट इज़ नोन एज योर इनवैलिड शिफ्ट. अंडरस्टैंड द मतलब ऑफ वैलिड शिफ्ट. Suppose this is your text, you want to search this part. So what you will do, you will start a loop starting with the first one. So if first character match with the second character, so you will try the second character with the second character of pattern, then third character with the third, fourth with the fourth. So that is means 1 2 3 up to m. So here when s is equal to 1, when s is your 0, so that is not match, ये आपका मैच नहीं हुआ. when s is equal to 1, that is again not match. when s is equal to 2, that is again not match. when s is equal to 3, so here first character is matched with the first, second with second, third with third, fourth with the fourth. For s is equal to 3, we have simply find out the pattern in the text. So that is known, that शिफ्ट इज योर वैलिड शिफ्ट, ये आपकी एक वैलिड शिफ्ट होगी. सो दैट मीन्स हमें एक टाइप से एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे आपकी जो कंडीशन है, इफ दैट कंडीशन इज मैच, तब हम उसको वी आर सिंपली से दैट वी हैव फाइंड आउट द स्ट्रिंग मैच. हमें स्ट्रिंग मैच हमें पर्टिकुलर फाइंड आउट हुआ. तो इन दिस एग्जाम्पल एस इज आपको शिफ्ट इक्वल टू 3 के लिए आपके पास वैलिड मैच. सो
आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आपके अलग अलग एल्गोरिथम हैं, बट इन आवर सिलेबस वी हैव ओनली कवर्ड फर्स्ट 2 पार्ट, हमें केवल फर्स्ट 2 पार्ट ही कवर्ड करने हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेसिंग टाइम। जो हमारा सिंपल एल्गोरिथम है उसमें कोई प्रोसेसिंग टाइम नहीं होता, द टाइम इज ऑलमोस्ट सेम फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। फॉर द सेकेंड एल्गोरिथम देयर इज सम प्रोसेसिंग टाइम, बट जो आपका मैचिंग टाइम है दैट इज द रिमेन सेम, दैट इज रिमेन सेम। सो अगर हम सिंपल एल्गोरिथम के ऊपर आते हैं, नेवी स्ट्रिंग मैचर के ऊपर आते हैं, दैट इज सिंपल अप्रोच आपकी वो यूज़ करता है जो अभी तक हम स्टेप कर रहे थे। वो पहले s इक्वल टू 0 के लिए देखा गया, फिर s इक्वल टू 1 के लिए, फिर s इक्वल टू 2 के लिए। सो आई मैं अगेन कवर्ड दिस इज योर टेक्स्ट। आपने सर्च करना है, सपोज करो a सर्च करना है, तो पहले आप s इक्वल टू 0 के लिए देखोगे तो फर्स्ट फैक्टर को फर्स्ट से मैच किया, सेकंड अगर सेकंड के साथ मैच नहीं है तो ऑब्वियस है फर्दर हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। द सेम पार्ट s इज इक्वल टू 1 शिफ्ट किया उसको, तो शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि आप फर्स्ट फैक्टर जो आपका टेक्स्ट है उसको सेकंड कैरेक्टर के फर्स्ट से मैच करोगे। अगेन इट इज़ नॉट मैच, अगर फर्स्ट ही मैच नहीं हो तो सेकंड तो मैच हो ना हो, बट इट विल ये इनवैलिड मैच। फिर हमने s इक्वल टू 3 किया, 3 का मतलब हुआ कि आपका s इक्वल टू 2 किया तो a के साथ मैच हुआ, फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट के साथ, देन सेकंड कैरेक्टर, देन थर्ड कैरेक्टर, तो मैच जब हो जाता है तो दैट इज़ योर वैलिड मैच। अगेन फॉर जब s इक्वल टू 3 के लिए किया तो ये आपका इनवैलिड मैच हुआ। तो मीन्स आपके पास दो स्ट्रिंग थी, वन इज t वन इज p, आपने सिंपली उसकी लेंथ फाइंड आउट की, t की लेंथ n आई, p की लेंथ आपके पास m आई, देन सिंपली आपका लूप चलेगा। तो लूप इज सिंपली योर 0 से लेके n माइनस m तक आपका लूप चला, n माइनस m तक आपका लूप चलेगा, मतलब 0 से स्टार्ट हुए हैं अप टू n माइनस m तक ही हमारा लूप चलेगा। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए आपकी जो टोटल लेंथ है, द टोटल लेंथ इज ऑफ t इज योर 6 एंड p इज योर 3, तो आपका जो लूप चला है 0 से लेके 6 माइनस 3 दैट इज 3 तक आपका लूप चलेगा। तो पहले s इज इक्वल टू 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा सर ये कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए क्यों नहीं चल रहा है? द रीज़न बिंग इज डैट कि आपने 3 तक मैच कर लिया, ये आपका s इक्वल टू 3 के लिए। अगर मैं इसको s इक्वल टू 4 करता हूँ, 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि b को किससे मैच करोगे, a के साथ, c को a के साथ, बट अभी अगर आप t की लास्ट करेक्टर देखो तो कोई भी उसके में करेक्टर नहीं है। डैट मीन्स जब मैं s इक्वल टू 4 करूँगा तो यहाँ पे कोई भी आपकी मैचिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई जो आपका लूप है, द लूप इज रन फ्रॉम s इज इक्वल टू 0 टू n माइनस m, एंड इन दैट पार्ट वी आर सिंपली चेक द कंडीशन। आप सिंपली क्या कंडीशन चेक कर रहे थे, जो हमारी स्ट्रिंग मैचिंग की थी उसी को आप चेक कर रहे थे कि p इक्वल टू 1 टू m, आप शिफ्ट करते जाओगे t की वैल्यू, s डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ s, 1 से लेके अप टू m तक आपका ये लूप चलता जाएगा। मतलब यहाँ आपकी सिंपली फर्स्ट फैक्टर को फर्स्ट से, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ अप टू लास्ट, तो डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ s आपकी मैचिंग होती जाएगी। जैसे ये s इक्वल टू 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, सिंपली प्रिंट द वैल्यू ऑफ s कि आपकी इस पर्टिकुलर के लिए आपकी वैल्यू आपका मैच फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली कम आउट इज योर, ये आपका n माइनस m टाइम लूप चल रहा है, n माइनस m प्लस 1 टाइम, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो आपका लूप चला है, टोटल टाइम लूप चलेगा आपका n माइनस m प्लस 1 आपका टोटल लूप चला। अब उसमें आप कितनी बार आपको मैचिंग करनी है, तो दैट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p इज योर m, तो वहाँ फर्स्ट वेक्टर को मैच करोगे, फिर सेकंड को, फिर टोटल कितनी मैचिंग होगी आपकी m। तो द कॉम्प्लेक्सिटी इज कम आउट इज योर बिग ऑफ n माइनस m प्लस 1 इंटू m। तो ये आपके फर्स्ट एल्गोरिथम था जो सिंपल अप्रोच यूज़ करता है। अब हम सेकंड एल्गोरिथम पे आते हैं। द सेकंड एल्गोरिथम इज योर Rabin-Karp method. Rabin and Karp proposed a string matching algorithm that performs well in practice and that are also generalized to other algorithms to the related problem. So basically what is my point, the Rabin-Karp algorithm use the pre-processing time, and the pre-processing जो total time है that is the theta m,
and the running time of the Rabin-Karp algorithm is also in the worst case is the same, that is the theta n minus m plus 1 into m times. So basically ये algorithm कुछ assumption करता है. It assumes that कि आपकी जो character हैं, that is the character is simply is your decimal number. ठीक है, तो we have simply said that the value is your 0 to n. Again it is again use one more concept, that is the hash function. So it's choose a hash function, correspondence to that hash function it is compute the hash value of each character. So first one, पहले ही पार्ट क्या होगा कि वो जो आपके पास पैटर्न दिया होगा उस कंप्लीट पैटर्न के लिए इट विल सिंपली कैलकुलेट द हैश वैल्यू. अगेन कैलकुलेट करने के बाद पैटर्न की कैलकुलेट करने के बाद हैश वैल्यू इट विल सिंपली कैलकुलेट द हैश वैल्यू फॉर योर टेक्स्ट. अब टेक्स्ट की वैल्यू 1 बाय 1 कंप्यूट करता जाएगा फॉर द लेंथ ऑफ m. वो कैलकुलेट करने के लिए मतलब टोटल उसका जो टोटल प्री प्रोसेसिंग होगा हैश वैल्यू के लिए, तो वो टोटल टाइम आपका कितना होगा, डैट इज़ द m. वो आपका m टाइम आपका वो कंसेप्ट चलेगा. अब आप क्या करोगे, सिंपली जो आपके पास हैश वैल्यू है उसको आप सिंपली कैलकुलेट करोगे. जो पैटर्न के लिए हैश वैल्यू है वही सेम वैल्यू आप टेक्स्ट की हैश वैल्यू से कंपेयर करोगे. अगर हैश वैल्यू इज मैच, इन दैट केस देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द मैचिंग. मीन्स अगर हैश वैल्यू अगर आपकी सेम है तो मे बी वो एक पॉसिबिलिटी है आपकी मैच की. इन दैट केस जब हैश वैल्यू सेम होगी तब हम उस केस के लिए वो मैचिंग वाला जो हमारा कंडीशन थी वो कंडीशन हम रन करेंगे. सो अगर आपकी वो हैश वैल्यू मैच होने के बाद अगर स्ट्रिंग मैच हो जाती है, दैट इज सिंपली यूर वैलिड मैच हो जाएगी. अदरवाइज अगर मे बी डिफरेंट टेक्स्ट के लिए भी आपकी हैश वैल्यू सेम आ सकती है, तो दैट इज द प्रोसेस हिट के नाम से वो जानी जाती है. तो वी विल सिंपली कैलकुलेट, जब हैश वैल्यू सेम होगी तभी उसके बाद हम स्ट्रिंग को मैच करेंगे. तो जो हमने भी नेवी एल्गोरिथम किया था, इससे पहले जो एल्गोरिथम किया था उसमें ऑब्वियस है प्री प्रोसेसिंग का कोई टाइम नहीं था. अगेन प्री प्रोसेस करने के बाद उसको हम वी आर नॉट एनालाइज, दैट इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ योर बेसिक एल्गोरिथम कि आप वहाँ पे प्रोसेस कर रहे हो बट उसकी जो वैल्यू है उसको आप एसेस नहीं करें. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ आपके पास आपने मैच करना था A-B मैच करना था एंड आपके पास स्ट्रिंग आ गई है A-B-A. सपोज करो फर्स्ट इस करेक्टर के लिए मैच नहीं हो रहा, ठीक है, तो मे बी अगर मेरे पास वैल्यू है A-A-B, अगर आपकी इसके लिए मैच हो गया A से मैच हो गया बट A-B से मैच नहीं हुआ, तो इन डैट केस ऑब्वियस है जब मैं ये इसके साथ मैच नहीं तो अगेन आई विल टू इंक्रीज द वैल्यू. जब इंक्रीज करूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बी को किसके साथ मैच करोगे आप, ए के साथ मैच करोगे. तो अगेन हमने इसको ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया था बट वी आर नॉट टेक केयर इन दैट एल्गोरिथम. तो इसलिए इस पार्ट को रैबिन-कार्प एल्गोरिथम ने दैट इज यूज द प्रोसेसिंग टाइम, तो प्री प्रोसेसिंग टाइम किया जिससे हम वैलिड मैच करते हैं. तो एक जनरल सी पॉइंट हम अगर कंसीडर करें, एक जनरल सा पॉइंट अगर हम कंसीडर करें कि सपोज करो आपके पास कोई एक नंबर है, जैसे नंबर सपोज करो 23903 है, तो इसको हम सिंपल कैसे लिखते थे, 2 की पावर 10 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3. तो इस नंबर को वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म. हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द वैल्यू इज यूर पी एम, मतलब 1 से आपके पास m वैल्यू है तो पी एम जो सबसे लास्ट डिजिट होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई किया, जो पी एम माइनस 1 वैल्यू होगी उसको 10 से मल्टीप्लाई किया. ये कंप्लीट ब्रैकेट है जो आगे आपके पास वैल्यू आती जाएगी. फिर 10 इंटू एम माइनस 2 जो उससे प्रीवियस डिजिट थी, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन. तो ये सारी जो डिजिट है आपकी 10 से मल्टीप्लाई होती है. जो भी आपको फार्मूला बोला था वही फार्मूला आपके पास कैलकुलेट होता जाएगा. तो एग्जांपल के लिए जो हमारे पास ये वर्ड है, इस वर्ड की हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है, इस वर्ड की हमें हैश वैल्यू कैलकुलेट करनी है.
अब हैश वैल्यू को हम टेक्स्ट की हैश वैल्यू से कंपेयर करते जाएंगे। ऑब्वियस है अगर मैच नहीं हुआ तो हमें नेक्स्ट से कंपेयर करना है, तो उसके लिए ये आपका जो हॉर्नर रूल्स है वो आपका इम्प्लीमेंट होता है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए मतलब इसको जर्नल फॉर्म में रेफरेंस फॉर्म में हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्म हम इसको रेफरेंस फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम हॉर्नर रूल कहते हैं। बट यहाँ पे हमें उस हैश फंक्शन यूज़ करना होता है, वो हैश फंक्शन ऑब्वियस है, मोड फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं। आई विल जस्ट कम ऑन द एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। सपोज करो आपके पास ये टेक्स्ट है, आपने सपोज करो आपने मैच करना है, पैटर्न मैच करना है 3 1 4 1 5, ये पैटर्न आपने मैच करना है। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप इसकी हैश वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे हैश फंक्शन हमने क्या यूज़ किया हुआ है, मोड 13, सिंपल सा हैश फंक्शन यूज़ किया कि नंबर को हम मोड 13 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट रिमाइंडर आएगा वो आपकी हैश वैल्यू आएगी। तो जब आप इस नंबर को 13 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मोड वैल्यू क्या आ गई, 7। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब आपने सेम फंक्शन को, हैश फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है किसके लिए, कंप्लीट जो आपका टेक्स्ट है उसके लिए आपने हैश फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपकी लेंथ कितनी थी, पैटर्न की लेंथ आपकी 5 कैरेक्टर थी, तो हम 5/5 कैरेक्टर की लेंथ के लिए करस्पॉन्डेंस हम हैश वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। तो पहली वैल्यू आई आपके पास 23590, ठीक है, 23590 के लिए हैश वैल्यू आई आपके पास 8। अब ऑब्वियस है इसके लिए वैल्यू 8, फिर नेक्स्ट वैल्यू किसकी हो जाएगी, हो जाएगी आपकी 35902 तक, ठीक है। तो 1 by 1 ये आपके पास हैश वैल्यू कैलकुलेट होता गया। हैश वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आपके पास ये हर मैच के करस्पॉन्डेंस आपके पास, स्ट्रिंग के करस्पॉन्डेंस आपके पास वैल्यू आती जाएगी। अब यहाँ पे अब हमें हैश वैल्यू, हमारे पास जो पैटर्न हमें सर्च करना है उसकी वैल्यू क्या है, 7, तो हम यहाँ पे 7 सर्च करेंगे। तो 7 आपको कहाँ पे मिला, दे आर द दो जगह आपके पास 7 है, 1 7 इज करस्पॉन्डेंस टू दिस स्ट्रिंग। तो ये आपके अब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए आप फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू सेम, दैट इज कम आउट इज इक्वल टू पैटर्न। तो ये आपका वैलिड मैच हुआ। मे बी यहाँ पे भी आपका हैश वैल्यू 7 आई है, बट यहाँ पे जो डिफरेंट वैल्यू है और डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम हैश वैल्यू आ सकते, दैट इज मे बी द पॉसिबिलिटी, बट ये आपका स्पेसिस हिट है। तो 1 by 1 आई थिंक द कंसेप्ट विल बी क्लियर कि आपने एक हैश फंक्शन यूज़ करना है, उसके करस्पॉन्डेंस वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहले पैटर्न के लिए, फिर आपने 1 by 1 सेम हैश फंक्शन के लिए आपने टेक्स्ट पे वो इम्प्लीमेंट करना है सेम लेंथ के लिए। देन जो आपके पास हैश वैल्यू है वो आपने 1 by 1 कंपेयर करते जाओगे, अगर वो इक्वलेंट है देन फिर उसके बाद हम सिंपली उसके करस्पॉन्डेंस हम मैच कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं। सपोज करो आपके पास वैल्यू है 31415, ठीक है, जो ऑब्वियस है हमें कैलकुलेट करना होता है, हैश वैल्यू कंप्लीट टेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें हम एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि कैसे हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जैसे सपोज करो आपके पास वैल्यू थी 31415, आपने इसके लिए हैश वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब इस पार्ट के लिए। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है आपके पास, नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 2, मतलब 3 हट जाएगा यहाँ से, 314152 के लिए वैल्यू कैलकुलेट की। अब नेक्स्ट किसके लिए कैलकुलेट करनी होगी आपको, 3 हट जाएगा आपका यहाँ पे एंड आपकी वैल्यू में क्या ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट इन्होंने क्या यूज़ किया है कि अगर हम इस वैल्यू में से जो अपने पास 31415 है उसमें से 3 को हटाना है, तो 3 को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, 3 इंटू जितनी ये डिजिट हैं उससे मल्टीप्लाई किया, उसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, तो वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास 1415। अब इस वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको वैल्यू को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 14150। देन अब उसमें नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके पास 2, तो 2 को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो इंस्टेंट कि आप कंप्लीट स्ट्रिंग लो, बस आप नेक्स्ट कैरेक्टर लेते जाना है, हमें नेक्स्ट कैरेक्टर लेते जाएंगे एंड आपके पास वो हैश वैल्यू आपके पास
अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट होती जाएगी। तो अब इसके करस्पॉन्डेंस हैज़ वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप कंप्लीट ये फार्मूला देखोगे तो यहाँ पे अब हमें इस वैल्यू को किससे कैलकुलेट करना, डिवाइड करना है, mod 13 से डिवाइड करना है। फार्मूला सेम हैज़ फंक्शन यूज़ किया, तो जो अभी आपको कंसेप्ट बताया था वो कंसेप्ट यूज़ किया। 3145 माइनस 3000 मल्टीप्लाई बाय 10, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसकी आपने हैश वैल्यू, अगर मैं सिंपल जनरल फॉर्म में बोलूँ इंस्टेंट की आप कंप्लीट कैलकुलेशन करो, हैश से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दी। इसकी वैल्यू क्या थी आपके हैश वैल्यू 7, तो 7 आया। माइनस 30,000 को जब आप mod 13 से डिवाइड करोगे तो उसकी हैश वैल्यू आएगी आपके पास, 13 से डिवाइड करोगे 9, तो ये आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय, ऑब्वियस है इसका हमें -2 वैल्यू आई, 7 माइनस 9 -2, तो इसकी रियल वैल्यू लेंगे 2, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 20 आया, 20 प्लस 2 actually there is some doubt, so I make a correction कि इंस्टेंट ऑफ mod वैल्यू -2 जो वैल्यू आई थी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी, दैट इज़ -2 इंटू 10, तो -2 प्लस 2 न्यू डिजिट तो -18, उसकी अगर हम -18 की mod वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 8 वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है। ये जो एग्ज़ाम्पल आप इसको इतनी वैल्यू कैलकुलेट करने की बजाय आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। सो डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज़ यूर कि नेक्स्ट डिजिट जो आएगी आपके पास वो आएगी 14152, उसको आप सिंपली 13 से जब आप डिवाइड करोगे तो उसकी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 8 आएगी। तो यहाँ पे माइनस वैल्यू था, माइनस वैल्यू के लिए आपकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके 8 आई है। आप उसको अगर मैं जस्ट दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, स्टार्टिंग वाला एक एग्जांपल लेता हूँ, 23590 के लिए मोड वैल्यू क्या है आपके पास 8, तो 8 है, मतलब अगर इसी फार्मूले का जो इन्होंने बुक दिया हुआ, अगर हम इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं तो आपके पास 23590 के लिए वैल्यू आई है आपके पास मोड वैल्यू 8 माइनस 2 इंटू 10,000, सो 10,000 की जो मोड वैल्यू है वो आपके पास 3 आई है, ठीक है। सो 2 इंटू 3, जब इसको कैलकुलेट करोगे 8 माइनस 2 इंटू 3, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके पास 2, तो 20 प्लस 2 इज कम आउट इज यूर 22 को mod 13 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 9, ठीक है। तो जब नेगेटिव वैल्यू है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, बट जब वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है उसके पास डायरेक्टली आपके पास ये फार्मूले के करस्पॉन्डेंस वैल्यू कैलकुलेट हो गए। इंस्टेंट की आप ये फार्मूला यूज आप उस डायरेक्टली सीधा 14152 का डायरेक्टली 13 से डिवाइड करके जो मोड वैल्यू आएगी उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये जो फार्मूला है दैट फार्मूला इज़ यूअर, ये एक जर्नल फॉर्म में जो फार्मूला लिखा हुआ है ये आपका जर्नल फॉर्म में फार्मूला है कि इसको हम लिख सकते हैं dm-1 mod q, ठीक है, कि 1 by 1 नेक्स्ट जो डिजिट है आपकी वो करस्पॉन्डेंस कैलकुलेट होती जाएगी। तो ऐसे जब आई एम रिपीटिंग द पार्ट कि पहले आपने पैटर्न का हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर टेक्स्ट की करस्पॉन्डेंस हैश वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास जो हैश वैल्यू आई है पैटर्न के लिए वो आप 1 by 1 मैच करोगे। सो जो मैचिंग है मे भी जहाँ पे 7 है उसके लिए आपके पास जो वैल्यू आई थी वो आप कैलकुलेट करोगे, एंड अगर वो स्ट्रिंग मैच हो जाती है तो दैन इज वैलिड मैच, अदरवाइज इट इज़ द स्पूरियस मैच। सो दैट इज़ द एल्गोरिथम। आपके पास t दिया हुआ है, p दिया हुआ है, लेंथ कैलकुलेट की n एंड m की, ठीक है। q इज़ द मोड वैल्यू, d आपके पास वैल्यू है जिसकी करस्पॉन्डेंस आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो n की वैल्यू कैलकुलेट की, m की वैल्यू कैलकुलेट की,
नाउ हमने सिंपली जो हमारे पास हैश वैल्यू है वो उसके लिए हमने वैल्यू कैलकुलेट की पैटर्न की। अब आप p की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, सिंपली आपने प्री प्रोसेस करना है, जो टेक्स्ट की वैल्यू थी वो आपने कैलकुलेट करनी है, तो m आपका लूप चलेगा, उसके करस्पॉन्डेंस आप वो वैल्यू कैलकुलेट करते जाओगे। ठीक है, ये आपका जो हमने फार्मूला भी लिखवाया था वो फार्मूला है जिसको हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद सिंपली आपका जो टेबल में जो वैल्यू आई है उसको आप मैच करोगे, तो 0 से लेकर n-1 का लूप चला आपका। अगर जो पैटर्न की जो हैश वैल्यू थी वो ts से मैच हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में आप पैटर्न से फिर उसको मैच करते हो। ठीक है, कि वो आपका हिट आपका वैलिड मैच है या इनवैलिड मैच है, उसके करस्पॉन्डेंस आपकी मैचिंग होगी। अगर आपकी s की वैल्यू इज़ लेस देन n-1, लेस देन है, तो आप अगेन फिर उसके अकॉर्डिंग दोबारा से वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो इस केस में भी आपकी लूप चल रहा है, दैट इज लूप इज कम आउट यूर n-1 n-m+1, उसमें आपका m टाइम आपका मैच चल रहा है। तो इस केस में आपका प्री प्रोसेसिंग किया, हैश वैल्यू का कंसेप्ट यूज हुआ, करस्पॉन्डेंस दैट इज द एग्जांपल एंड दैट इज द एल्गोरिथम। सो ये हमारा टॉपिक था स्ट्रिंग मैच। तो आई मेक ए करेक्शन कि इंस्टेंट ऑफ मोड वैल्यू -2 जो वैल्यू आई थी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी, दैट इज़ -2 × 10, तो -2 प्लस 2 न्यू डिजिट तो -18। उसकी अगर हम -18 की मोड वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 8 वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है। ये जो एग्ज़ाम्पल आप इसको इतनी वैल्यू कैलकुलेट करने की बजाय आप उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। सो डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज़ यूर कि नेक्स्ट डिजिट जो आएगी आपके पास वो आएगी 14152। उसको आप सिंपली 13 से जब आप डिवाइड करोगे तो उसकी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 8 आएगी। तो यहाँ पे माइनस वैल्यू था, माइनस वैल्यू के लिए आपकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके 8 आई है। आप उसको अगर मैं जस्ट दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, स्टार्टिंग वाला एक एग्जांपल लेता हूँ, 23590 के लिए मोड वैल्यू क्या है आपके पास 8। तो 8 है, मतलब अगर इसी फार्मूले का जो इन्होंने बुक दिया हुआ, अगर हम इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं तो आपके पास 23590 के लिए वैल्यू आई है आपके पास मोड वैल्यू 8 -2 × 10,000। सो 10,000 की जो मोड वैल्यू है वो आपके पास 3 आई है। ठीक है, सो 2 × 3 जब इसको कैलकुलेट करोगे 8 - 2 × 3 तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 2 × 10 20 नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके पास 2, तो 20 + 2 इज कम आउट इज यूर 22 को मोड 13 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 9। ठीक है, तो जब नेगेटिव वैल्यू है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, बट जब वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है उसके पास डायरेक्टली आपके पास ये फार्मूले के करस्पॉन्डेंस वैल्यू कैलकुलेट हो गए। इंस्टेंट की आप ये फार्मूला यूज आप उस डायरेक्टली सीधा 14152 का डायरेक्टली 13 से डिवाइड करके जो मोड वैल्यू आएगी उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये जो फार्मूला है दैट फार्मूला इज़ यूअर, ये एक जर्नल फॉर्म में जो फार्मूला लिखा हुआ है ये आपका जर्नल फॉर्म में फार्मूला है कि इसको हम लिख सकते हैं dm-1 मोड q। ठीक है, कि 1 by 1 नेक्स्ट जो डिजिट है आपकी वो करस्पॉन्डेंस कैलकुलेट होती जाएगी। तो ऐसे जब आई एम रिपीटिंग द पार्ट कि पहले आपने पैटर्न का हैश वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर टेक्स्ट की करस्पॉन्डेंस हैश वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास जो हैश वैल्यू आई है पैटर्न के लिए वो आप 1 by 1 मैच करोगे। सो जो मैचिंग है मे भी जहाँ पे 7 है उसके लिए आपके पास जो वैल्यू आई थी वो आप कैलकुलेट करोगे, एंड अगर वो स्ट्रिंग मैच हो जाती है तो दैट इज वैलिड मैच, अदरवाइज इट इज़ द स्पूरियस मैच। सो दैट इज़ द एल्गोरिथम। आपके पास t दिया हुआ है, p दिया हुआ है, लेंथ कैलकुलेट की n एंड m की। ठीक है, q इज़ द मोड वैल्यू, d आपके पास वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डेंस आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो n की वैल्यू कैलकुलेट की, m की वैल्यू कैलकुलेट की। नाउ हमने सिंपली जो हमारे पास हैश वैल्यू है वो उसके लिए हमने
वैल्यू कैलकुलेट की पैटर्न की। अब आप पी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0, सिंपली आपने प्री प्रोसेस करना है, जो टेक्स्ट की वैल्यू थी वो आपने कैलकुलेट करनी है, तो एम आपका लूप चलेगा, उसके करस्पॉन्डेंस आप वो वैल्यू कैलकुलेट करते जाओगे। ठीक है, ये आपका जो हमने फार्मूला भी लिखवाया था वो फार्मूला है जिसको हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद सिंपली आपका जो टेबल में जो वैल्यू आई है उसको आप मैच करोगे, तो 0 से लेकर n-1 का लूप चला आपका। अगर जो पैटर्न की जो हैश वैल्यू थी वो ts से मैच हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में आप पैटर्न से फिर उसको मैच करते हो, ठीक है, कि वो आपका हिट आपका वैलिड मैच है या इनवैलिड मैच है, उसके करस्पॉन्डेंस आपकी मैचिंग होगी। अगर आपकी s की वैल्यू इज़ लेस देन n-1, लेस देन है, तो आप अगेन फिर उसके अकॉर्डिंग दोबारा से वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो इस केस में भी आपकी लूप चल रहा है, दैट इज़ लूप इज़ कम आउट यू आर n-1, n-m+1, उसमें आपका m टाइम आपका मैच चल रहा है। तो इस केस में आपका प्री प्रोसेसिंग किया, हैश वैल्यू का कंसेप्ट यूज़ हुआ, करस्पॉन्डेंस दैट इज़ द एग्जाम्पल एंड दैट इज़ द एल्गोरिथम। सो ये हमारा टॉपिक था स्ट्रिंग मैचिंग।